Good morning, students. I hope you all are doing well at your places, and today we'll be completing with the essay writing. And after doing this, you all will be having a good knowledge of essay. We'll be doing 3-4 essays, and similarly, you can also frame your essays in your own words. So let's just begin. The title of our chapter is essay writing, right? An essay is a piece of content which is written from the perspective of what? Of the author and of course the writer. हमारे perspective से लिखा जाता है. Essays जो होते हैं, they are similar to a story or a pamphlet or thesis etc. Right? The best thing about essay that you can use any type of language, कोई सी भी use कर सकते हैं, whether it's formal and whether it's informal, right? And देखिए pamphlet में H is silent, it is इसीलिए इसको pamphlet नहीं pamphlet बोला जाता है, right? What are the points to remember while writing an essay? First is you have to choose the subject, कि आप किस subject ऊपर लिखना चाहते हैं. Then you have to gather an information, then you have to plan your essay accordingly. Second is begin by introducing your main idea in the opening. सबसे पहले main idea और then provide evidence. फिर evidence होना चाहिए, उससे related proof होना चाहिए so that you can support it in the middle and then summarize in the end. End में conclusion होना चाहिए. And after you have finished the writing, you must take a look कि आपने क्या लिखा है अपने essay के बारे में. Check for any mistake if there is any mistake in your words. You choose that how you arrange your ideas. कैसे आप अपने ideas को arrange करेंगे, कैसे आप अपने rules बताएंगे grammar के, of course the spelling and of course the way you are writing the writing. It basically looks on the page कि आपकी handwriting कैसी है. Make sure that everything should be neat and clean. Tidy means clean. And one more thing, grammar में A आता है, E नहीं आता है, right? So my first visit to the zoo, this is the first essay that we'll be studying. देखिए last Sunday I went to zoo in Delhi with my family. मैं अपनी family के साथ zoo में गया, ठीक है. First of all मैंने एक lion देखा and as he stood with him, his head held up, मतलब उसका सर ऊपर था with its long mane, उसकी बहुत बड़ी kind of गर्दन जिसको हम बोलते हैं around its neck. neck के नीचे जो उसका skin लटक रहा होता है उसको हम बोलते हैं mane. उसकी जो tail है, it is moving from to fro, right? And he लुक वेरी ग्रैंड, बहुत ही बड़ा दिखता है. रॉयल बिकॉज ही इज द किंग ऑफ बीस्ट. वी ऑल नो, हमने टाइगर्स देखे, लेपर्ड्स देखे, पैंथर्स देखे, उनके शार्प टीथ देखे और फ्लैशिंग आई देखी विच सेंड अ शिवर थ्रू माई बॉडी. मतलब उनकी जो आईज हैं वो इतना फ्लैश करती है कि मेरी आत्मा कांप गई अंदर से. मंकीज जो होते हैं, दे आर वेरी फनी. दे प्लेड विद वन अनदर एंड ऑफ कोर्स दे जंप फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ अ ट्री टू अनदर. दे लुक, उनके पास केक्स हैं, फ्रूट्स हैं, हमारे हाथों से उन्होंने ले लिए. बट वन मंकी वॉज वेरी बैड टेम्पर्ड. कैसा था, उसका थोड़ा गुस्सा ज्यादा था. बैड टेम्पर्ड, पुटिंग हिज हैंड्स आउट थ्रू द बार्स. बार्स के अंदर मतलब बार्स मतलब जो उनके आगे लगा रखे, तो वहां से अपना हाथ बाहर निकाला. ही स्नैच द कैप ऑफ हेड. कैप ऑफ द हेड मतलब किसी के सर के ऊपर से टोपा उतार दिया ऑफ एन ओल्ड मैन एंड टोर इट इनटू पीसेस, और उसको फाड़ दिया अपने दांतों से. देन आई सॉ अ लार्ज पॉन्ड जहाँ पे बहुत सारे एलिगेटर्स है. एलिगेटर इज अ काइंड ऑफ स्पीशीज लाइक अ क्रोकोडाइल बिकॉज दे आर एम्फीबियंस. They live on land as well as on water. Crocodiles and tortoise in it, both, all the three, they are amphibians. They belong to an amphibian category. हमने red, green, blue और yellowish fish भी देखी which are swimming in the water in the to and fro movement, right? I was greatly delighted. I was very happy to see all these birds. कुछ बहुत बड़ी थी, कुछ small थी, and they had a various colors. बहुत सारे colors थे. उनके जो bright feathers थे वो हमारी आंखों को बहुत अच्छा लग रहे थे. They were charming our eyes. उनके sweet notes please the ear, बहुत अच्छा गा रहे थे. Sparrows थी वहाँ पे, they chirp, sparrows की आवाज आ रही थी. Other birds they seemed to form a chorus, मतलब एक chorus बनाया हुआ था, साथ में गाती थी. They fill the air with merry notes means बहुत खुशी खुशी. I was about to leave the zoo when I see कि वहाँ पे peacock जो है, he is dancing in the garden nearby. डांस कर रहा था. उनकी बहुत ही बड़ी long graceful neck थी. colored crest थे. colored crest means they have a very beautiful combination of colors. gorgeous plums थे और spread out in the shape of what, of a fan, मतलब कि उसके पंख बहुत सुंदर थे उनके. because they were looking so pretty. in the evening I have returned home, मैं अपने घर आया, having spent a pleasant at the zoo. next is a wonder to the of the world. On one Sunday my friends, we visited to Taj Mahal. It is, you all know Taj Mahal. It has been built by it has been built by Shah Jahan in the memory of his beloved wife, that is Mumtaz Mahal. It is a famous wonder of the world. We all know that it is in the 7 wonders of the world. उन्होंने मेरे को बताया, they told me that आगरा जो ताजमहल है, ताज एट आगरा is one of the most beautiful buildings हैं हमारे पूरे world में. It is built by Emperor Shah Jahan in the memory of his beloved wife Mumtaz Mahal. I already told you it is one of the 7 wonders of the world. ये भी मैंने आपको बता दिया है.
इन द मंथ ऑफ नवंबर वी मेड अ प्रोग्राम, हमने प्रोग्राम बनाया किसके लिए, टू सी द ताजमहल, राइट। आई वेंट टू आगरा विद माई फ्रेंड्स, हम लोग गए आगरा बाय ट्रेन। द जर्नी वॉज वेरी कंफर्टेबल, राइट, बहुत ही कंफर्टेबल थी। वी स्टेड इन दी होटल, रॉयल होटल में रहे राजा की मंडी में, एंड देर इज अ ह्यूज सुपर मार्केट भी थी जहाँ पे बहुत सारे आइटम थी विच इज नीडेड बाय पीपल, राइट। आफ्टर हैविंग सम लाइट फूड, कुछ फूड के बाद वी वेंट टू सी ताज एट अबाउट 7 PM पे गए। वी हायर्ड अ टोंगा, हम लोग टोंगा में बैठ के गए एंड रीच देयर विद इन एन हाफ एन आवर, आधे घंटे में, मतलब आधे घंटे में हम वहाँ पहुंच गए। हमने देखा व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ ताज इन द मूनलाइट, बिकॉज इट वाज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। इट वाज मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। आउट ऑफ द 4 कॉर्नर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म, 4 कॉर्नर्स हैं, देयर आर 4 मीनार्स, मीन्स 4 ऐसे खड़ी हुई हैं पिलर्स। इट वाज शाइनिंग लाइक सिल्वर, चांदी की तरह चमक रहा था। एंड ऑफ कोर्स द वाटर ऑफ यमुना, इट वाज टोटली क्लियर एंड शाइनिंग, बहुत ही शाइन कर रहा था। द होल ऑफ द सीन वाज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेंट अराउंड द बिल्डिंग, हम बिल्डिंग के पास गए। आई सॉ द ताज, मैंने ताज को देखा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आई फाउंड इट वेरी ब्यूटीफुल, जितना मैंने सुना था उससे भी ज्यादा सुंदर था। इट वॉज रियली अ पीस ऑफ आर्ट, इट इज एक्चुअली, एंड आई सॉ इट अगेन एंड अगेन, और मैं उसको बार बार देखता रह गया। वी सॉ 2 ग्रेव्स, मेन बिल्डिंग में हमने 2 ग्रेव्स देखी। दे बिलोंग टू, वन बिलोंग्स टू द एम्परर एंड नेक्स्ट वन टू द क्वीन। दे वर लाइंग बरीड साइड बाय साइड, मतलब एक के साथ एक। डेथ कुड नॉट सेपरेट देम, कि उनको डेथ भी अलग नहीं कर पाई, मौत भी अलग नहीं कर पाई। और ग्रेव्स के अराउंड देर इज अ फाइन वर्क विद अ प्रेशियस स्टोन, बहुत ही वैल्यूएबल स्टोन से काम हुआ था। ताज इज अ पीस ऑफ आर्ट, बहुत ही सुंदर एक एग्जाम्पल है आर्ट का। नो अदर बिल्डिंग कैन बी एज ब्यूटिफुल एज Taj. It is famous all over the world for its beauty and it looks like a dream in the marble, की मार्बल में भी कोई एक ड्रीम है, सपना है। नेक्स्ट इज इंडिया गेट। देर आर मेनी टूरिस्ट प्लेसेस इन दिल्ली, वी ऑल नो, बट इंडिया गेट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल नियर इंडिया गेट। नेशनल war memorial, it has been built by the soldiers who were martyrs ड्यूरिंग दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखिए वर्ल्ड मार्टर डे कब होता है, 30th January एवरी ईयर, राइट। इट इज इनॉग्रेटेड इन 1931 February। इंडिया गेट, इट वॉज बिल्ड बाय अ फेमस आर्किटेक्ट, एक बना है जिनका नाम क्या है, ऑफिस ऑफ दोज टाइम, जिसका नाम है एडविन ल्यूटेंस, राइट। ही इज द टेस्टिमोनी ऑफ दिस आर्किटेक्चरल प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री का बहुत ही ऐतिहासिक जगह है ये, विच इज नोन फॉर इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट आर्किटेक्चरल डिजाइन। इट इज ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं इंडिया गेट को बने हुए, एंड इट इज 42 मीटर इन हाइट। इसकी हाइट कितनी है, 42 मीटर है, और 9 मीटर इसकी विड्थ है, इतना इसका 9 मीटर है। ग्रेनाइट का बना हुआ है, येलो और रेड स्टोन का। और जो इंडिया गेट है, इट इज एन एम्बॉडीमेंट, एम्बॉडीमेंट मीन्स इट्स अ परफेक्ट, आप कह सकते हैं परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्के डी ट्रायम्फल डी एलियोटे इन पेरिस फ्रांस में हम बोलते हैं, क्योंकि पेरिस फ्रांस में भी एक आर्क है जो कि कुछ ऐसा ही बना हुआ है, राइट। तो एक हमने कुछ फैक्ट पता किए कि दिस इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर इसकी विड्थ है, एंड इट हैज बीन built by Edwin Lutyens, right? And it took around 10 years, तो 10 साल लग गए बनने में। इंडिया गेट was originally built to commemorate. What do you mean by commemorate? Means to remember the martyrs of the British India Army who fought for their motherland against the enemy during the First World War, right? It also commemorates the martyrs of बांग्लादेश के martyrs को भी। Liberation means free war in the 1971. अमर जवान ज्योति भी बना हुआ है, विच इज एन इंट्रिकल पार्ट ऑफ दिस इंडिया गेट। इट वॉज बिल्ड इन इंडो पाकिस्तान वॉर में बना गया था, एंड इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, राइट। नेक्स्ट इज ऑन दी कंप्यूटर्स। वी ऑल नो कंप्यूटर एक बहुत ही ज्यादा वंडरफुल इन्वेंशन है किसका, चार्ल्स बेबेज, बिकॉज चार्ल्स बेबेज is famously known as the father of computer. Yes, who is known as the father of computer? इंग्लैंड में ये जो चार्ल्स बेबेज हैं, इन्होंने डेवलप करी एक मशीन ताकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को ईजी बना जाए इन 1833 में। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1943 में आया था। कंप्यूटर्स ने अपना जो है हमारा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, हैड चेंज द लाइफस्टाइल ऑफ मैनकाइंड, बिकॉज दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी वाइटल रोल इन एवरी फील्ड। बिजनेस में कंप्यूटर्स बेसिकली दे आर यूज फॉर मेकिंग द प्लेरोल्स, बिलिंग, इनवॉइसिंग करते हैं हम, सॉर्टिंग करते हैं स्टॉक को, एंड ऑफ कोर्स इन्वेंट्री बनाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्री? चीज़ों का हिसाब रखना कि आज हमारे गोदाम से कितना पैसा गया है, कितना आया है, इन्वेंट्री कंट्रोल। और कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर्स भी डेवलप किए गए हैं, दे हैव बीन डेवलप्ड व्हिच आर पर्टिकुलरली सूटेबल फॉर कमर्शियल एंड ऑफ कोर्स द बिजनेस एप्लीकेशन।
नेक्स्ट आप एजुकेशन में भी देखते हैं कंप्यूटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द अटेंडेंस, बच्चों की फीस, प्रिपेयरिंग इट्स मेरिट लिस्ट, डेट शीट्स हम बनाते हैं, टाइम टेबल्स बनाते हैं। बैंक में कंप्यूटर्स आर यूज फॉर मेकिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द लोगों का, दैट इज ईच कस्टमर एंड वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट दी उनके बैलेंस के बारे में, डिपॉजिट, ओवरड्राफ्ट एंड इंटरेस्ट चार्जेस एक्सेट्रा। हॉस्पिटल में हम लोग रखते हैं टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग, कितनी दवाइयाँ आई हैं, वी हैव टू स्टोर द कंडीशन ऑफ द पेशेंट्स की कैसा पेशेंट्स हैं, उनकी डिटेल टेस्ट, उनकी क्लिनिकल रिपोर्ट्स एंड ऑफ कोर्स प्रिपेयरिंग फॉर द हॉस्पिटल बजट। कंप्यूटर्स दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर रेगुलेटिंग एयर, रेलवे एंड वाटर surface transportation, right? Computer it is used in the field of education और entertainment, दोनों में यूज होता है। हम लोग मूवीज वॉच कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो यूज इट एज अ म्यूजिक प्लेयर के जैसे हम लोग वीडियो गेम्स खेल सकते हैं। ह्यूमंस विल बी टोटली डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर इन द कमिंग फ्यूचर, हेंस कंप्यूटर हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस डे। वी ऑल नो इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड every year on 15th of August. So India gained freedom on 15th of August 1947 from the British rule. Therefore जो people of India हैं they celebrate 15 August as the Independence Day every year. हर साल बनाते हैं people and of course the students from all over the country. They celebrate in school, colleges, offices में, industrial areas में, even in corporates also. And it is one of the most important days in the lives of all the Indians because on this day we get complete freedom, right? India was under the British rule again almost for 200 years. We all know this. British ने हमारी country को पूरा लूट कर दिया and harmed the citizens of country. They plundered the country of its wealth. Plunder means destroy, and however जो nation की citizens and they decided that it was enough and raised to raise the voices against the British rule. Now people from all over the country they started raising their voices against the British rule. These people they give their lives to fight the government की गवर्नमेंट को फाइट करें। एंड दिस वाज द फ्रीडम फाइटर महात्मा गांधी जिन्होंने एडवोकेट किया नॉन वायलेंस और बहुत सारी रैली हमारी कंट्री में निकाली। लाइक ऑल द पीपल हु टुक पार्ट इन द फ्रीडम, राइट, they paid off on 1947 when India got freedom. Since 1947 India has been celebrating this day as Independence Day. Next is of course on the rainy season. Now रेनी सीजन बिगिंस इन द मंथ ऑफ मिडिल जून में बारिशें आने लगती हैं फ्रॉम द मिडल ऑफ द जुलाई जिसको हम एंड ऑफ द सितंबर बोलते हैं। ऑलमोस्ट बहुत सारी रेन्स आती हैं। मॉनसून विंड जो है दे ब्लो करती हैं साउथ वेस्ट से, और कहाँ पे, जुलाई अगस्त सितंबर में, और फिर हमारी तरफ क्या लेकर आती है, बारिश। नाउ बिफोर मॉनसून ब्रेक इट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई, बहुत ही गर्मी होती है। जब रेन स्टार्ट हो जाती है तो थोड़ी ठंडी हवा चलने लगती है टू ब्लो। डार्क क्लाउड्स होते हैं, दे आर हैवी विद रेन एंड ऑफ कोर्स दे गैदर इन द स्काई में गैदर करते हैं। राइट, द लाइफ गिविंग रेन जो है इट पोर्स डाउन, और बहुत ज़्यादा बारिश आती है, थंडर और लाइटनिंग भी होती है, विंड भी चलने लगती है स्ट्रॉन्गर, एंड रेन फॉल इन टॉरेंट्स। टॉरेंट्स मीन्स कभी कभी लैंडस्लाइड्स भी आ जाते हैं फॉर आवर्स टुगेदर। दिस टॉरेंट मीन्स लगातार। द होल कंट्री साइड जो है ना इट लुक लाइक अ लेक, कैसे लगती है, लेक जैसी। रिवर्स और स्ट्रीम्स भी बहुत ज़्यादा फ्लडेड हो जाती हैं, ओवर फ्लडेड हो जाती हैं, कैटल्स को स्वेप्ट अवे कर देते हैं, घर में हाउसेस फॉल डाउन, घर गिर जाते हैं, एंड स्टैंडिंग क्रॉप्स जो हैं वो खराब हो जाते हैं। राइट, इफ द रेनफॉल इज नॉर्मल, अगर बिल्कुल नॉर्मल है देन इट इज़ ब्लेसिंग फॉर द फार्मर, बट देन दे फ्लो देयर लैंड्स, आराम से अपने लैंड्स को फ्लो करते हैं और अपने सीड्स को सो करते हैं। फिर शॉर्ट पीरियड में जो फील्ड जो है वो रिच क्रॉप से भर जाती है। इट इज़ द डलेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर का, बहुत ही ज़्यादा डल पार्ट है जब हमारा बिजनेस बहुत ही ज़्यादा कम नीचे चला जाता है। ऑल बिजनेस कम्स टू अ स्टैंड स्टिल, मतलब रुक जाता है। व्हेन देयर इज़ अ वेरी हैवी रेनफॉल, जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो स्ट्रीट्स कैसी हो जाती है, मिट्टी से भर जाती हैं, और रोड्स भी बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी हो जाती हैं, और सारे के सारे आउटडोर वर्क हमारे सस्पेंड हो जाते हैं, रुक जाते हैं। हाउसेज और लेन्स दे आर फिल्ड विद अनप्लेजेंट स्मेल्स, बहुत ही ज़्यादा स्मेल्स आती हैं। द रूफ जो है दे ऑफन बिगेन टू लीक करने लगती है, एंड समटाइम्स मलेरिया, डेंगू एक्सेट्रा दे ब्रेक आउट, और लोगों को फीवर भी हो जाता है। येट द सीजन इज नॉट विदाउट इट्स एडवांटेज, कोई भी ऐसा सीजन नहीं है जो अपना एडवांटेज ना देके जाए। टेम्परेचर नीचे हो जाता है, अब हवाएं ठंडी हो जाती हैं, द एयर गेट्स कूल एंड ऑफ कोर्स प्योर। कॉर्न, वेजिटेबल्स, फूड स्टफ्स ये बहुत ही ज़्यादा चीप हो जाते हैं। द वेदर बिकम प्लीजेंट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेदर हो जाता है, और पीपल जो है एक साथ काम करते हैं। फार्मर एक्सपेक्ट करते हैं एक अच्छा सा क्रॉप ग्रो हो और फुल ऑफ जॉय, लोग बहुत मज़े करें। द अर्थ हमारी गीली हो जाती है और कभी कभी सॉफ्ट भी हो जाती है, तो ग्रास जो है वो ग्रो करती है, और ट्रीज जो है दे स्प्रेड आउट देयर ग्रीन ब्रांचेस एंड एवरीवन फील्स टू ग्लैड, बहुत खुशी होती है। मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज, यू हैव टू राइट एन एसे ऑफ अराउंड 200 वर्ड्स। 200 वर्ड्स
का मतलब होता है you have to write an essay of at least 2 pages and कुछ few lines above them. Then you have to write an essay on all the following topics at your own, right? So that was all about essay writing. Please do write the essays on the topic which is given below and keep doing hard work and stay blessed. Thank you.